यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। अच्छा तन्वी बेटा, कोई Yes, ma'am. कंफ्यूज ओके, कोई कंफ्यूजन है कल की कोई भी? ओके, नाउ स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। मैम यस यस उज्जवल बेटा। मैम मैं अनुराग बोल रहा हूँ मैम। जो Okay, अनुराग। CLF3 है, CLF3 में Yes. जो लोन पेयर है वो कहीं और नहीं हो सकते? जैसे फ्लोरीन दो ऊपर बना दी और एक यहाँ पे लोन पेयर दो ट्रायंगल, जो प्लेन में जो ट्रायंगल है उस पे बना दी लोन पेयर, तो लोन पेयर कहीं और नहीं बन सकते वहाँ पे? नो नो स्टूडेंट, अनुराग देखिए कल मैंने ये डिस्कस किया था इन बोर्ड एग्जामिनेशन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉ द टी शेप लाइक दिस, number of student 99% student and they got 0 marks. But first thing is that this is 3D structures in space and the maximum repulsion between the bond pair and lone pair existing between the positions. Now yes, yes Ujjwal. Okay, so understand, is it clear Anurag? Anurag Yes, beta, ma'am. any confusion? Okay beta, so next move to next type of structure, EB3, E2 type structure we have discussed yesterday. Now AB5, AB5E. That means ki how many total surrounded atoms or lone pairs? AB5E. That means total surrounded orbitals are 5 and 1, 6. Okay students, this is about the 6 surrounded atoms or the orbitals used in this structure. There is 6, in which bond pair is equals to 5 and lone pair is equals to 1. Okay, so the structure is A is the center atom, 5 surrounded atoms first placed at square planar shape. Square planar shape means कि क्या होता है, स्क्वायर आपका फॉर्मेट होगा. लोकेट द पोजीशन ऑफ स्क्वायर्स. स्क्वायर की पोजीशंस में पहले जितने भी आपके सराउंडेड एटम हैं वो प्लेस करेंगे. बट स्क्वायर हैव ओनली 4 कॉर्नर्स. स्क्वायर में बेटा कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4. बट वी हैव 5 सराउंडेड एटम्स. So one atom is placed at, एक कहां पर एटम प्लेस करेगा बेटा? Below. Yes, below or above, it's your choice. Below or above the plane. And one lone pair placed at opposite of this. अगर आपने above the plane बनाया है तो lone pair below the plane होगा, और अगर lone pair above the plane है तो atom आपका below the plane होगा. And the example is ClF5. This is also a interhalogen compound. This is also a interhalogen compound. And the square is square, ये 4 atom. So the shape is बच्चे, shape क्या होगी तन्वी? Square pyramidal. Color yesterday? Octahedral. No. Square pyramidal. Octahedral. No. अच्छा. Octahedral is expected only. The actual shape is Square pyramidal. देखिए, expected is octahedral as the surrounded atom number is 6. But actual में देखो बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, ये देखिए आप, ये स्क्वायर हुआ और एक तरफ ही आपका एटम है, तो ये बाय पिरामिडल नहीं होगा. स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, इसको हम लोग स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं. स्क्वायर पिरामिडल. एनी कंफ्यूजन? ऑन अदर हैंड, अगर आपका है AB4E2 टाइप, दैट मीन्स कि लोन पेयर नंबर इज 2 एंड सराउंडेड एटम 4, देन द स्ट्रक्चर इज similar to this.
ओनली चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स इसमें? shape, दो लोन और तो पेयर बेटा ऊपर हो जाए। मैम दो हाँ, very good. Two lone pairs present. One is above the plane and one is below the plane. Okay, beta? One is above the plane and one is below the plane. And shape is square. planar, प्लेनर. Very good, very good, very good. And the example is xenon tetrafluoride. Xenon is an inert gas. Only known element in inert gases which can form halide and oxides only. You all know inert gases जो हैं वो unreactive होते हैं, सबको पता है ना स्टूडेंट्स? यस मैम। बट केवल एक नोन जो इनर्ट गैस है वो जिनॉन होती हैं जो कि कंपाउंड्स बनाती हैं, लेकिन कंपाउंड्स में भी ओनली ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स. Okay students, only oxides and halides can form by xenon element. So any confusion regarding VSEPR theory students? कोई भी confusion है यहाँ तक? no ma'am, किसी को भी? No. ओके. न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पूरा टॉपिक नहीं सारी क्लासेस अटेंड नहीं की थी, उनको कहीं कोई कंफ्यूजन है? No मैम. ओके बेटा. सो नाउ board question practice on the basis of this topic. Okay, are you ready? So my Yes, ma'am. first question is on the basis of VSEPR theory, on the basis of VSEPR theory, what is the full form of VSEPR theory? valence shell electron pair repulsion, Very good. So predict the shape. First तो आपको shape, second geometry, third number of lone pair electrons and fourth number of bond pair electrons. बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी दो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, हाफ मार्क्स फ्रॉम ईच. लेकिन यहाँ मैंने समराइज करके पूरा 4 टॉपिक्स आपको एक साथ करवा रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं एलिमेंट आपको यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ वो वही है जो अभी अनुराग ने पूछा था, क्योंकि उससे आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगी. तो फर्स्ट आपका है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ClF3. वेरी गुड, ClF3. देखिए नंबर ऑफ टाइम्स बोर्ड एग्जाम में आपको नेम गिवन होता है और पहले आपको फॉर्मूला प्रेडिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी को गलत कर देते हैं तो फिर आगे बिल्कुल 0 मार्क्स ही मिल जाता है. तो ClF3 एंड दिस इज अ इंटर हैलोजन कंपाउंड, माइंड इट. सो फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज, ये फॉर्मूला है बोर्ड एग्जाम में 12th में आपको यही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए ये आप नोट कर लीजिए. 11th की बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स. ओके, 11th की बुक्स में ये नहीं है, इसलिए आपको ये पूरा लिख लीजिए. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, total number of electron pairs around center atom, total number of electron pairs around center atom is equals to, हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, सेंटर एटम के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं. If we know about total number of electron pairs, then we can easily predict lone pair and bond pair. So total number of electron pairs around center atom is equals to number of valence electron on center atom. Number of valence electron on center atom
plus monovalent surrounded atom. और स्लैश करके लिखिए टोटल नंबर ऑफ surrounded atom upon 2. ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम. फर्स्ट वी नो अबाउट सेंटर एटम. किसी भी कंपाउंड में सेंटर एटम कौन सा है, अगर आपको ये प्रेडिक्ट है, फिर उसका ग्रुप नंबर और उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज मोनोवेलेंट सराउंडेड एटम, सेकंड इज टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम. देखिए अगर आपको हैलोजन इज द सराउंडेड एटम, देन यू राइट मोनोवेलेंट सराउंडेड एटम. और अगर आपका सराउंडेड एटम कोई और है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, तब आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम. दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. मोनोवेलेंट ओनली फॉर हैलोजन्स एंड हाइड्रोजन्स. ठीक है बेटा. मोनोवेलेंट सराउंडेड एटम्स मींस हैलोजन्स. तन्वी, Yes, ma'am. बेटा इसमें मोनोवेलेंट सराउंडेड एटम मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में मोनोवेलेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? पूरी पीरियोडिक टेबल में मोनोवेलेंट कंपाउंड्स, मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं? मैम जिनकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि हेलोजन्स ग्रुप 17 वाले. एंड Hydrogen. the halogens and हाइड्रोजन. Hydrogen. hydrogen like elements also, students. Hydrogen and hydrogen like elements. What is the meaning of hydrogen like elements? Ma'am, group 1 element. What is the meaning? हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट जिसमें हाइड्रोजन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन होता है आफ्टर गेनिंग और लूजिंग. ओके ओके स्टूडेंट्स, लाइक लिथियम. ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? सो अनुराग. यस मैम. ओके अनुराग, आप मुझे बताइए, आपने मुझसे पूछा था ClF3 का, तो आप मुझे बताइए हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड दिस कंपाउंड? यस मैम. आप अपनी कॉपी में सारे स्टूडेंट्स करिए और फिर मुझे बताइए कि कितना होगा इसमें, और मैं जिससे पूछ रही हूँ वो मुझे डिक्टेट करेगा. Yes, ma'am. कर लिया. प्राची. यस प्राची. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम इज? मैम सेंटर एटम क्लोरीन है तो 7 हो गए. वेरी गुड. देन नंबर ऑफ सराउंडेड एटम? मैम इसमें मोनोवेलेंट एटम लेंगे क्योंकि फ्लोरीन है तो 3 है ना फ्लोरीन. वेरी गुड. मोनोवेलेंट एटम. अब फिर हाँ. क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 तो 5 आ गया. 5. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी भी स्टूडेंट को? नहीं. तो बेटा अब इसमें बॉन्ड पेयर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला होता है. बोर्ड एग्जाम में आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे पूरा लर्न है कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर्स हैं. यहाँ आपने टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाल लिए हैं 5. अब बॉन्ड पेयर्स जो होते हैं, बॉन्ड पेयर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सराउंडेड एटम. अब सराउंडेड एटम कितने हैं स्टूडेंट्स? 3. वेरी गुड. तो यहाँ हो गया 3. अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं? 5 minus 3, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. तो अब हमारे लोन पेयर कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2. वेरी गुड. अब इसका शेप तो आपको पता ही है क्या होगा? यस मैम. इसका शेप ये है, देखिए टी शेप. वेरी गुड. T-shape. 2 lone pairs and 3 bond pairs are present. ठीक है बेटा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन है? नो मैम. नो मैम. अच्छा,
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज IF7। ये वही क्वेश्चंस हैं बेटा जी जो बोर्ड एग्जाम में रेगुलर आते हैं 12th क्लास में, 11th में भी है ये टॉपिक और 12th में भी है। तो इनको मैम इसकी इम्पोर्टेंट लिखकर ज्योमेट्री इन नोट्स को आप कहीं मैम इसकी ज्योमेट्री बेटा ट्राइगोनल नहीं, बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री मींस ओनली टू टर्म्स, रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री ओनली। सो ज्योमेट्री इज irregular. Why irregular? Beta, why irregular? because lone pairs are present. Yes, very good, very good. तो irregular geometry due to presence of two lone pair electron. Very good. Geometry means nothing else. Geometry is regular or irregular. Okay, now we take an example of IF7. Here I is iodine. Okay, IF7. IF7. So how many total number of electron pairs? Total number of electron pairs. Ma'am, 7. Yes, ma'am, 7. How 7? मैम प्लस पहले सराउंडिंग एटम में मतलब वैलेंस Right. इलेक्ट्रॉन और Valence electron 7 plus surrounded atom 7 7. upon 2 is equals to 7. Very good. So how many bond pair electron pairs? 7. And how many lone pairs? 0. Hmm? 0. 7 minus 7 is equals to 0. So no lone pair present. Nil. 0. आप जो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। अब इसमें हम 7 को स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है क्योंकि यहाँ पर आप ए और बी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि आपको दोनों ए भी पता है और बी भी पता है, यानी सेंटर एटम भी पता है मुझे और सराउंडेड एटम भी पता है। तो फिर अब इसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट आपको क्या करना है, 4 डायरेक्शंस चूज कर लेने हैं। 7 का जब बना रहे हैं तो आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये सराउंडेड एटम है हमारा फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एटम्स आर प्लेस्ड। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया। ये हल्का सा टिल्ट होता है लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेट भी बनाते हैं तो बोर्ड में इसको एक्सेप्टेबल होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, इनके डायगोनल्स निकालने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम साइड। बॉटम साइड मींस कि हमने यहां से ड्रॉ किया 1, फिर एक यहां से ड्रॉ किया 2। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 7. 7। और हाउ मेनी एंगेज्ड, कितने हो गए हैं हमारे पास, 6. 6। तो अभी कितने हैं, अभी सराउंडेड एटम अभी कितने रह गए हैं आपके, 1. वेरी गुड। सो 1 जो होगा वो बाइसेक्ट ईदर दिस साइड और दिस साइड, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो है वो अबव द प्लेन जा रहा है इसलिए इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बाइसेक्ट नहीं करके बिल्कुल उसके पास बनाते हैं। आप इधर भी बना सकते हो और इस साइड भी बना सकते हो, बट ओनली 1 साइड, 2 साइड दैट मींस सराउंडेड एटम 8, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, शेप, बेसिक शेप इसका ये देखिए। तो कितने हैं इसमें, 1 2 3 5। जो प्लेन पेपर पर कितने लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं बेटा जी, 5। तो 5 मींस क्या होता था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। और 5 पर हम क्या कंसीडर करते थे बेटा, देखिए 1 पर मोनो, फिर डाई, ट्राई, टेट्रा फॉर 4, और 5 के लिए क्या यूज करते थे, पेंटा। हाँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, पेंटागोनल। और 2 को हमने कंसीडर नहीं किया था, एक इस वाले को फ्लोरीन एटम को और एक इस वाले को। तो क्या हो जाएगा इसका नेम, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
वेरी गुड। सो इसका जो आपका शेप हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। स्टूडेंट्स एक बात को यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पेन से ये मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। पेंसिल से ही आपको ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। मैंने कल भी आपको ये बताया था, फिर से बता रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। नॉट ओनली इन 12th क्लास, इन 11th क्लास ऑल्सो। आप 11 से ही इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा आया है, रिपीट हुआ, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। हाँ जी बेटा, तो हाइड्रोनियम आयन का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हाइड्रोनियम आयन का। H3O+. H3O+. नेहा शर्मा। शर्मा, हाँ जी, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला। मैम H3O+. तो बेटा हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कैसे होता है? हाउ हाइड्रोनियम आयन फॉर्म? मैम स्ट्रक्चर नहीं, इसको आपने कभी पढ़ा है? हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? यस मैम। क्या होता है हाइड्रोनियम आयन? देखिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस हाइड्रोजन आयन। क्या हुआ बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस प्लस हाइड्रोनियम आयन। ओके, सो वाटर का तो स्ट्रक्चर आपको पता है, सबको पता है ना? वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है ना? उससे पहले जरा हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं, यहाँ पर भी मोनोवेलेंट ही होगा, क्योंकि इसमें सेंटर एटम कौन सा है बेटा? सेंटर एटम ऑक्सीजन। वेरी गुड। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कितने होंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ये देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, इसीलिए ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। पहले तो आपको ये पता है कि हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है इसका। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसीलिए तो ये मैम ट्रिकी 4। क्वेश्चन है। मैम नहीं। 4। यस एक मिनट, मैम 4 आएगा, 4 आएगा। क्या 4 आएगा? कैसे 4 मतलब आएगा ये बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आप 4 बता रहे हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो? हम इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों 4 आएंगे बताइए जरा। हम क्योंकि मैम, पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ मैम, माइनस हो जाएगा। यस मैम। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आप प्रेडिक्ट करोगे? 6। मैम 5। सराउंडेड एटम 3 -1। जिसके बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड हो रहा है वो अपना थोड़ा सा म्यूट कर लेना। देखिए बेटा, जिसको आ गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया है वो पहले समझिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंटर एटम। पहले तो आपको यही ऑक्सीजन का Z8, so 2 6 valence electron is 6 for cation means O positive charge सराउंडेड एटम पर कभी नहीं होता है, हमेशा सेंटर एटम पर होता है बेटा जी। तो टोटल नंबर ऑफ ये सबको समझ में आ गया बेटा जी? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब मुझे निकालने हैं तो 5 प्लस
सराउंडेड एटम कितने हैं 3/2, तो 5 + 3/2 = हो गया हमारा 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे 4 हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5 कंसीडर होगा। ठीक है बेटा, इसमें तो नहीं है कोई कंफ्यूजन। देखिए ये बिल्कुल एक स्पेशल टाइप का आपको एग्जांपल है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कैटायन दिया हुआ है, सेंटर एटम पर एक चार्ज है, और चार्ज की वजह से आपको मालूम है कैटायंस में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज is shown by positive charge. So here one positive charge shows loss of only one electron. So first we draw the structure of water. First we draw the structure of water. Two lone pair and two bond pairs are present. ये आपको याद है? Yes, ma'am. Two lone pair or two bond pairs are present in structure of water. But here we discussed about hydronium ion. So hydronium ion have total number of electron pair 4. So bond pair is equals to number of surrounded atom. Very good. One more thing students, अगर आपको बॉन्ड पेयर नहीं पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर, अगर आपसे पूछा गया शेयर्ड पेयर, तब कितना होगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म शेयर्ड पेयर? इन बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली लैंग्वेज चेंज, क्वेश्चंस वही रहते हैं, केवल लैंग्वेज चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। बताइए मैम शेयर्ड पेयर भी बॉन्ड पेयर्स Yes, वेरी ma'am. गुड तन्वी, वेरी गुड तन्वी, सॉरी नेम मैंने देख नहीं पाया था। चलिए अब लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा? 4 - 1, सॉरी 4 - 3 आपका 1। तो लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 3 है, टोटल 4 है। यहाँ पर भी देखिए वाटर में 1 2 3 4 है अभी भी बेटा जी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, लोन पेयर हो गया है 1 ओनली। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसी से रिजेंबल करना है मुझे, चीटिंग करनी है बिल्कुल, कि अगर एक रह जाएगा तो इसमें रिपल्शन जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। जब 2 लोन पेयर थे तो उसके अकॉर्डिंग था, और 3 सराउंडेड एटम placed in these positions and 1 positive charge, overall positive charge on compound shown by large bracket. इसको मैथ्स में आप लोग क्या बोलते हो? लॉन्ग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। सो इस स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो मैम। नाउ No, वी ma'am. डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी? इरेगुलर। दोनों की, दोनों का, दोनों का। हम इरेगुलर होगा। Irregular. हाइड्रोनियम आयन, Regular. Irregular. इरेगुलर फॉर व्हाट? वाटर और हाइड्रोनियम आयन? मैम दोनों में। बोथ। Ma'am, both. दोनों में, Very good. दोनों। Why? Because they have lone For the pairs. presence Ma'am, of lone pair. lone pair. Okay. Due to presence of lone pair, and lone pair distorted the geometry of the compound. अगर आपको रीजन आएगा तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। आपको बुक्स में कोई भी स्टेटमेंट दिया हो बोर्ड एग्जाम में, वो एप्लीकेबल नहीं होता है स्टूडेंट्स। आपको बस इतना लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड लोन पेयर डिस्टॉर्टेड द ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes. कोई भी एक स्टूडेंट ये बताइए कि क्या ये आपने ऐसा स्ट्रक्चर, ये सराउंडेड और सेंटर एटम को अगर हम बिल्कुल ए बी मान लें, तो क्या ये शेप आपने पहले कहीं देखा है? यस मैम। हाँ, तो ये किसका शेप है? किस एलिमेंट को ये रिसेंबल कर रहा है? NH3।
NH3 जो NH वेरी गुड, वेरी गुड, yes वेरी ma'am, गुड। NH3 और NH3 का एक्चुअल शेप क्या होता था बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल। हम ट्राइगोनल पिरामिड। अरे 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 अरे, क्या बोल रहे हो आप? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। मैम पिरामिड। मैम पिरामिडल। यस, tetrahedral is expected structures as 4 head are theirs. Tetrahedral for CH4, methane. But here pyramidal due to presence of lone pair distorted geometry. आपने नहीं बोला था बेटा जी? यस मैम। So expected structure is tetrahedral. तो tetrahedral तो expected था, वो तो actual हो ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन में, है ना? ये बात समझ में आया? इतना क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? यस मैम यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हाइड्रोनियम आयन का एक्चुअल शेप क्या हुआ फिर? ये ट्राइगोनल पिरामिडल। मैम ट्राइगो पिरामिडल। मैम पिरामिडल एक मिनट, ये ट्राइगोनल पिरामिड तन्वी बोल ये देखिए 1 2 3, ये पिरामिडल है, पिरामिडल शेप। Vinita ma'am, यस मैम। ma'am 1 minute hardly. मैम ओके। सो तन्वी, तन्वी यस मैम। बेटा आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? एक बार फिर से एक बार समझ लेते हैं। और ये टॉपिक अब यहाँ पर एंड हो गया है, कल आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसको आप पढ़कर आइएगा। पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स और हाइब्रिडाइजेशन। अगर टाइम होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को मैम कल टेस्ट नहीं होगा? सॉरी 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 सॉरी, टुमारो इज सैटरडे, आई जस्ट फॉरगेट इट। यस्टरडे पता नहीं। रजनी मैम, रजनी मैम, Yes ma'am. मैम सैटरडे टेस्ट इस बार होगा? Ma'am no idea. No information till yet. Okay. So no problem students, on Monday onward we can start the polar and non-polar and hybridization topics. Tanvi, ओके मैम we are discussing about the tetrahedral pyramidal